رک جاؤ سویرا، میں آج کسی بھی صورت تمہیں اپنی بات سنے بغیر جانے نہیں دوں گا۔ اینڈریو ہٹیلے انداز میں اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کے انداز پر سویرا نے خوف سے اسے دیکھا، اس کی نگاہوں کی جارحانہ چمک پر سویرا کو اپنے اندر سرد سی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ہمت کر کے مضبوط لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ سر، مجھے آپ میں اور آپ کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں میریڈ ہوں اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جانتا ہوں، بہت اچھی طرح سے، تمہاری اس پیپر میرج کی حقیقت کو جانتا ہوں۔ لیکن سویٹ ہارٹ، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، تم اسے چیلنج سمجھ لو یا جو بھی، مگر تم صرف اور صرف اینڈریو کی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر پھنکارا۔ شہریار نے تالیوں کی گونج میں عروہ کو رنگ تو پہنا دی تھی۔ عروہ کا چہرہ خوشی سے بھی دمک رہا تھا۔ سب مہمان مبارکباد دے رہے تھے۔ عروہ کو شہریار کی بیزاری اچھی طرح سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی شہریار کو چھوڑ نہیں پا رہی تھی۔ مسئلہ شہریار نہیں تھا، بلکہ مسئلہ سویرا تھی۔ اس کا ذہن سویرا جیسی دبو پاکستانی گھریلو ٹائپ کی لڑکی سے شکست کھانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ غائب دماغی سے شہریار کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب اس کی نظر اسٹیج سے ذرا دور سویرا اور اس کے ساتھ کھڑے ڈاکٹر اینڈریو پر پڑی، اس کی ساری پزمردگی کہیں دور جا سوئی۔ اس نے تیزی سے شہریار کے بازو میں ہاتھ ڈالا۔ شیری ڈارلنگ، وہ دیکھو، تمہاری وائف کس آدمی سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ شہریار نے اس سمت دیکھا تو اس کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے۔ وہ آدمی سویرا کا ہاتھ پکڑ کر راستہ روکے کھڑا تھا اور سویرا کے چہرے پر بلا کا خوف تھا۔ شہریار عروہ کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے تیزی سے اس سمت بڑھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہریار کی سرد آواز گونجی۔ اوہ مسٹر شہریار، کنگریچولیشن فار یور انگیجمنٹ، اینڈریو نے تپاک سے کہا۔ ہاتھ چھوڑو۔ شہریار گھرایا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ شیری ریلیکس، یہ گیسٹ ہیں، عروہ نے اس کا بازو تھام کر کہا۔ شہریار نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو عروہ کی گرفت سے چھڑوایا اور سویرا کا ہاتھ اینڈریو کی گرفت سے نکال کر اسے اپنے پیچھے کیا۔ اسے کس نے انوائٹ کیا ہے؟ وہ اینڈریو کے گریبان کو جکڑتے ہوئے اینا سے پوچھنے لگا۔ باس، شاید یہ مس عروہ کے گیسٹ ہوں، اینا نے تیزی سے جواب دیا۔ مجھے کیا پتا، مسٹر، تم بتاؤ کس نے بلایا ہے تمہیں؟ عروہ نے اینا کو گھورتے ہوئے الٹا اینڈریو سے پوچھا۔ مسٹر شہریار، مجھے سویرا نے انوائٹ کیا ہے اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اس تقریب میں بور نہیں ہونے دیں گی۔ اینڈریو نے اپنا گریبان چھڑوایا۔ شٹ اپ، میری وائف کا نام بھی تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ شہریار نے اسے زور سے دھکا دیا۔ تم ایک بار اس سے تو پوچھ لو، کیوں سویٹ ہارٹ، بتاؤ اپنے سو کالڈ۔ اینڈریو کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ شہریار غضبناک انداز میں اس پر پل پڑا۔ وہ اسے گھونسے پہ گھونسا مار رہا تھا اور عروہ فک چہرے کے ساتھ شہریار کا جنون دیکھ رہی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو کالڈ ہر سویٹ ہارٹ، تیری اتنی مجال! وہ بپھر چکا تھا۔ سارے مہمان متوجہ ہو چکے تھے۔ اینڈریو نے شہریار کو زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا، پھر تیزی سے دوبارہ اینڈریو کی طرف لپکا۔ عروہ نے پیچھے کھڑی تھر تھر کانپتی سویرا کو دیکھا اور چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر رکی۔ مبارک ہو، آج تمہاری وجہ سے سارے مہمانوں میں شہریار کا تماشا بن چکا ہے۔ آخر تم اس کی زندگی سے چلی کیوں نہیں جاتی ہو؟ کیوں اپنی منحوسیت سے اس کی زندگی بھی خراب کر رہی ہو؟ وہ پھونکاری۔ سر پلیز چھوڑ دیں، پولیس کیس بن جائے گا، اینا نے ریکویسٹ کی۔ جونس بھی شور سن کر اس کی طرف آ چکا تھا۔ شہریار، یار چھوڑ دے اسے۔ وہ ان دونوں کے بیچ میں آیا۔ مسٹر شہریار، تم نے بلا جواز مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا۔ اینڈریو نے اپنی آستین سے اپنے ہونٹوں سے رستا خون صاف کیا۔ میں یہاں تمہاری وائف کے بلاوے پر آیا تھا، جو اب چپ چاپ کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے۔ ہمت ہے تو پوچھو اس سے کہ مجھے کیوں ادھر بلایا تھا۔ وہ غرایا۔ اینا، شہریار سرد لہجے میں بولا۔ یس سر۔ وہ تیزی سے آگے آئی۔ سویرا کو اندر لے کر جاؤ، وہ سہمی ہوئی سویرا پر نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ اوکے باس۔ وہ تیزی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سویرا کی طرف بڑھی اور ساکت کھڑی سویرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ مجھے میری بیوی سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنا یہ ناٹک بند کرو اور آئندہ اپنی اس گندی زبان پر
कभी भी मेरी बीवी का नाम नहीं लेना वरना जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। नाउ गेट आउट। वो चिल्लाया। इतना अंधा एतमाद, वाह, एंड्रयू ने तंजिया अंदाज में कहा। मिस्टर, तुम जाओ यहाँ से। जोन्स ने सख्ती से एंड्रयू को बाहर का रास्ता दिखाया। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन अपनी ये तज़हीक मैं भूलूंगा नहीं। मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम इसे अपनी कैद में रखते हो। देखना, सवेरा खुद आएगी मेरे पास। वो सर्द लहजे में बोला। यूब। शहरयार तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसको गिरेबान से पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। ऐना, आप पार्टी ख़त्म करवाएं और मेहमानों को रुखसत करें। जोन्स ने जल्दी से ऐना को फ़ोन किया, जो सवेरा को अंदर लेकर गई थी। शहरयार, छोड़ो इसे, तमाशा बन रहा है। इस जलील ने मेरी बीवी का नाम अपनी नापाक ज़बान से लिया कैसे? शहरयार ने जोन्स का हाथ झटका। तुम अभी के अभी इस जगह से दफ़ा हो जाओ। जोन्स ने एंड्रयू को घूरा और शहरयार का बाजू सख्ती से जकड़ते हुए उसे ज़बरदस्ती अंदर ले गया। अब मज़ीद और कितनी ज़िल्लत उठाओगी? चलो अब घर चलें। अब मज़ीद और कितनी ज़िल्लत उठाओगी? चलो अब घर चलें। मिसिस सोहराब साकित खड़ी उर्वा से मुखातिब हुई। मम्मी, वो उस 2 टके की लड़की के लिए इतना पागल हो रहा है। उर्वा खोए खोए लहजे में बोली। वो 2 टके की लड़की उसकी बीवी है। खुदारा, आप तो होश के नाखून लो और चलो यहाँ से। मिसिस सोहराब ने लब भींचते हुए कहा। तो फिर मैं क्या हूँ? कौन हूँ? उर्वा ने हिज़ियानी अंदाज में उनको शानों से जकड़ा। ये सवाल तुम घर चलकर सुकून से बैठकर खुद से पूछना। मिसिस सोहराब ने आहिस्तगी से उसे थामा और वापसी के लिए मुड़ गई। सवेरा, तुम थक गई होगी, अब तुम आराम करो, मैं मेहमानों को रुखसत करके आती हूँ। ऐना सवेरा को ऊपर ले आई थी। ऐना, सच्ची मैंने सर को नहीं बुलाया। वो जाती हुई ऐना का हाथ पकड़कर बोली। सवेरा हनी, सबको पता है कि तुमने उस बदतमीज़ आदमी को नहीं बुलाया। तुम परेशान मत हो, आराम करो, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। उसने सवेरा के हाथ थपथपाते हुए कहा। लेकिन वो मुझसे खफा होंगे। उल्टा सीधा मत सोचो, सब ठीक है, और अब बस, मैं वापस आकर बात करती हूँ। ऐना उसे टोकते हुए नीचे चली गई। उसे सब मेहमानों को जल्द अज जल्द रुखसत करना था। सवेरा ऐना के जाने के बाद परेशानी से चक्कर काट रही थी। अब पता नहीं शहरयार का रवैया क्या हो। उसका सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा था। वो वहीं बेड पर सर थाम कर अपने नसीबों को रोने लगी। या अल्लाह, मैंने कभी भी तेरी नाफरमानी नहीं की, बल्कि किसी की भी नहीं की, तो फिर मुझे क्यों, किस खता की सज़ा दे रहा है? उस शख्स ने मेरा किरदार मेरे शोहर की नज़रों में दागदार कर दिया है। अब वो मुझे छोड़ देंगे। क्यों मेरे मौला, क्यों मुझे तमाशा बना रहा है? वो हिचकियों से रोती हुई अपने अल्लाह से शिकवा कर रही थी, इससे पहले कि वो मुझे बातें सुनाकर जलील करके अपनी ज़िंदगी से निकालें। मुझे खुद ही उनकी ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए। वो तो वैसे भी उर्वा से मंगनी कर चुके हैं। मुझे उनके बीच से निकल जाना चाहिए। कुछ देर बाद वो आंसू साफ करते हुए उठी और कमरे से निकलकर शहरयार के रूम की तरफ बढ़ी। अंदर कमरे में पहुंचकर वो चारों जानिब खाली खाली नज़रों से देख रही थी। दीवार पर आवेज़ा शहरयार की पोर्ट्रेट के पास जाकर उसने अपनी सिसकी दबाते हुए शिकवा कुना नज़रों से उस पोर्ट्रेट को देखा। फिर आंसू साफ करती हुई साइड मेज़ पर रखे शहरयार के लैपटॉप के पास आई। ये हमारे निकाह का गिफ्ट जो मुझ पर उधार था। उसकी आंखों में वो खूबसूरत मंजर लहराया जब शहरयार ने बड़ी तवज्जो से उसे रिंग पहनाई थी। अपनी उंगली में अंगूठी को प्यार से देखते हुए उसने नम आंखों से रिंग उतारी और चूम कर लैपटॉप पर रख दी। फिर उसने कपकपाते हुए हाथों से अपनी गर्दन से लिपटी शहरयार के प्यार की निशानी उस चेन को बमुश्किल उतारा। अब आपका मुझ पर कोई एहसान, कोई उधार नहीं रहा। वो चेन अंगूठी के साथ रखकर तेज कदमों से चलती हुई वापस उस कोने वाले कमरे में आई। कमरा लॉक करके सबसे पहले अपना सामान पैक किया। उसका इरादा ऐना के साथ जाने का था। जोन्स, तुमने मुझे क्यों रोका? शहरयार ने गुस्से से अपना आप छुड़वाया। यार, तुम एक समझदार ज़हीन इंसान हो और फिक्र मत करो, हम उस बदतमीज़ को डील कर लेंगे। अभी इतने मेहमानों में तमाशा लगाना मुनासिब नहीं था, जोन्स ने समझाया। मेरे सिवा कोई भी उसका नाम ले, ये मुझे गवारा नहीं। और वो, उस जलील आदमी ने उसका हाथ पकड़ा। शहरयार की आंखें सुर्ख हो गईं। शहरी कंट्रोल यार, अब तेरा ये दीवानों जैसा हाल देखकर तो मैंने भी शादी से तौबा कर लिया। अच्छा भला कूल माइंडेड बंदा था और अब पक्का मजनू दीवाना लग रहा है।
जोन्स ने अफसोस से कहा। जोन्स, मैं अभी भी कूल हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब से वो मेरे साथ आई है मैं उसके लिए बहुत पॉजेसिव होता जा रहा हूँ। मैं कोशिश के बावजूद उसे अपने जहन से नहीं निकाल पाता। इसीलिए मैंने अपने और उसके रिश्ते को तस्लीम किया और अब मैं खुद को समझ ही नहीं पा रहा। बस दिल चाहता है कि उसे कहीं कैद करके सबकी नज़रों से छुपा कर रख दूँ। वो बहुत छोटी है यार, उसे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है। शहरियार के लहजे में थकन थी, उलझन थी। अच्छा अब तुम जाओ, आराम करो और सवेरा सिस्टर को देखो, वो भी अब इस सब से डर गई होगी। जोन्स ने उसके शानों पर हाथ रखा। जोन्स को गेस्ट रूम में ठहरा कर शहरियार ऊपर अपने कमरे में आया। उसका मूड अभी भी बहुत ख़राब था। ढीले ढाले अंदाज में वो कमरे में दाखिल हुआ। लाइट ऑन करके बेड पर नज़र डाली तो सवेरा नहीं थी। उसने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। सुइयां रात का 1 बजा रही थी। उसके माथे पर शिकने नमूदार होना शुरू हुई। अभी वो पलट कर बाहर जाने ही वाला था कि उसकी नज़रें साइड मेज पर रखे अपने लैपटॉप के ऊपर रखी रिंग, चेन और अंगूठी पर पड़ी। वो चलते हुए मेज तक आया और अंगूठी और रिंग को उठाकर गौर से देखते हुए लब भींचे। उसकी आंखों में खून उतर आया था। सवेरा ने उसकी मोहब्बत से पहनाई रिंग और चेन उतार कर उसकी ज़ात की नफ़ी की थी। वो रिंग को ज़ोर से मुट्ठी में भींचते हुए बाहर निकला। उसका रुख कोने पर बने उसी कमरे की तरफ था जहां सवेरा बार बार उसके मना करने के बावजूद पाई जाती थी। उसने दरवाजे की नॉब पर हाथ रखा तो दरवाज़ा लॉक था। ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसने बिना सोचे समझे एक ज़ोरदार किक लकड़ी के दरवाजे को लगाई और लगाता चला गया। सवेरा ने शोर की आवाज़ सुनकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी नींद में बोझल पलकें उठाईं। उसका जहन अभी भी तारीकी में डूबा हुआ था। दफातन दरवाजे से ज़ोर से उठने वाली आवाज़ से खौफ की एक तेज़ लहर उसकी रीढ़ की हड्डी को छू गई। घबरा कर उसने अपना दुपट्टा सिरहाने से उठाकर ओढ़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलती, दरवाज़ा एक झटके से टूटकर कमरे के अंदर गिरा। वो चीख मार कर पीछे हटी। सब्ज़ाज़ार से ढकी हुई बड़ी सी हवेली में चहल पहल अपने अरूज पर थी। 2 दिन बाद उन सब की लंदन की फ़्लाइट थी। वो शहरियार को सरप्राइज़ देने के लिए 1 हफ्ता पहले ही लंदन पहुंच रहे थे। हालांकि जाहिदा बेगम काफ़ी दिनों से जाने के लिए शॉपिंग कर रही थी, लेकिन फिर भी मुतमईन नहीं थी। आए दिन वो रुखसार बाजार के चक्कर लगा रही थी जो फरजाना को एक आंख नहीं भा रहे थे। आज भी वो दोनों बाजार से वापसी पर शाह बीबी के कमरे में सामान बिखराए उनकी राय ले रही थी। शाह बीबी, ये देखें, मैंने आपकी तरफ से सवेरा के लिए ये कामदार सूट और जरकून के टॉप्स लिए हैं। जाहिदा ने उन्हें जोड़ा दिखाया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, अल्लाह पहनना नसीब करे। शाह बीबी की आंखों में सताइश उतर आई। रुखसार, अब क्या उधर ही बैठी पराई चीज़ों को देखकर खुश होती रहोगी? समेटो ये सारा कूड़ा और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। फरजाना ने अंदर दाखिल होते हुए रुखसार को लताड़ा। फरजाना, तुम फिर शुरू हो गई? शाह बीबी ने रुखसार का फीका पड़ता चेहरा देखकर उन्हें टोका। शाह बीबी, आप भी तो देखें ना, उस मनहूस के लिए ये दोनों मेरे भाई का पैसा दोनों हाथों से बर्बाद कर रही हैं। मैं कहे देती हूँ कि उस करम जली ने मेरे शहरियार को परेशान कर रखा होगा। वो जाहिदा को घूरते हुए बोली। फरजाना, परेशान रखा है या आबाद, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा ना। लेकिन अगर तुम्हारे लक्षण यही रहे ना तो मैं तुम्हें उधर जाने ही नहीं दूंगी, शाह बीबी ने बेजारी से कहा। शाह बीबी, अब आप मुझे नहीं रोकेंगी, बस 2 दिन की बात है, फिर देखना मैं साबित करके रहूंगी कि शाहू उस मनहूस के साथ खुश नहीं है। फरजाना ने चैलेंज किया। बन्नो, शाहू के पास पूरा 1 साल है। वैसे भी मियाँ बीवी में जहनी हमांगी होने में वक्त लगता है। तुम फिक्र ना करो, खुशी खुशी जाओ और घूम फिर कर वापस आओ। खबरदार जो मेरे बच्चों के मामले में कुछ बोली, अगली फ़्लाइट से वापस बुलवा लूँगी मैं तुम्हें। शाह बीबी ने उसे तंबीह की। दरवाजे के गिरते ही शहरियार गुस्से में बिफरा हुआ अंदर दाखिल हुआ। सामने ही गुलाबी कुर्ता पाजामे वाले पार्टी ड्रेस में मलबूस सवेरा थर थर कांप रही थी। वो मुट्ठियां भींचे हुए उसकी सिमत बढ़ा। सवेरा चीख मारकर तेजी से पीछे हटी। दरवाजे के गिरते ही गुस्से में बिफरा हुआ शहरियार अंदर दाखिल हुआ तो उसकी सुर्ख आंखों और पत्थर की तरह सख्त चेहरे को देखकर घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। वो लंबे लंबे कदम उठाता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। वो मारे डर के कांपने लगी थी। आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही शहरियार उसके नज़दीक आया उसने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली थी।
उसने सवेरा के भीगे चेहरे को गुस्से से देखकर लब भींचे। मैं क्या तुम्हें उल्लू का पट्टा लगता हूँ जो मेरी हर बात हर हुक्म की नफी करना तुम ज़रूरी समझती हो? बोलो, जवाब दो। वो धाड़ा था। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे अच्छा सलूक किया जाए। मेरी जान का अजाब बन गई हो तुम। वो सख्ती से उसकी कलाई को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते हुए उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर निकला। पूरे फार्म हाउस में सन्नाटा छाया हुआ था। सारे कमरे साउंड प्रूफ होने की वजह से सब पुरसकून नींद सो रहे थे। वो उसे लेकर तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर निकलते ही तेज हवा और पानी की बौछार ने उन दोनों को भिगो डाला। भागते हुए कदमों के साथ पोर्च में आते ही शहरयार ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर पटकने वाले अंदाज में धकेला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। वो लब भींचे तेज ड्राइव करते हुए वापस शहर अपने घर की तरफ जा रहा था। सवेरा ने एक शिकायती निगाह से अपने हम सफ़र को देखा जो उसके आंसुओं से उसकी ज़ात से बेनियाज नज़र आ रहा था। उसके चेहरे की सर्द मोहरी सवेरा की रग रग में खौफ की लहर दौड़ा रही थी। उसे लग रहा था कि शहरयार अब डॉक्टर एंड्रयू की बातों में आकर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो उसे बताना चाहती थी कि एंड्रयू को उसने नहीं बुलाया था। वो उसे ये बताना चाहती थी कि किस तरह एंड्रयू पहले दिन से ही उसके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन शहरयार का गुस्सा देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी गाड़ी डिसबैलेंस होकर लड़खड़ाई। शिट! शहरयार ने झुंझलाकर गाड़ी रोकी और नीचे उतरा। ये शहर को जाती एक कच्ची सड़क थी जहां रात की ड्राइविंग खतरनाक समझी जाती थी। वो मौसम की शिद्दत से बेनियाज गाड़ी से उतरकर पिछला टायर देख रहा था जो पंक्चर हो गया था। उसने डिक्की से स्पेयर टायर उतारा, टायर तब्दील करने के लिए जैक निकाला और अकड़ू बैठकर टायर तब्दील करने लगा। सवेरा जो बरसती बारिश और माहौल से बेनियाज अपनी ही सोचों में गुम थी, बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर अचानक ही अपने होशो हवास में वापस आई। गाड़ी रुकी हुई थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। विंड स्क्रीन पर तेजी से बूंदें गिर रही थी। अगले ही लम्हे आसमान में जोर से बिजली चमकी और बादल गरजे तो वो सहम कर रह गई। ये मौसम, ये गरज चमक उसके अंदर खौफ भर रहा था। उसे लगा शहरयार उसे उस वीराने में अकेला छोड़कर चला गया है। वो बिना सोचे समझे गाड़ी से उतरी। तेज बौछार ने उसे सरता पैर पानी में शराबूर कर दिया था। वो कपकपाते हुए अंधेरे में आंखें फाड़े शहरयार को ढूंढती हुई आगे बढ़ी। चंद कदम ही आगे बढ़ी थी कि आसमान पर जोर से बिजली के चमकने से दरारें सी पड़ी। उसके हलक से एक फलक शगाफ चीख निकली। शहरयार जल्दी जल्दी टायर बदल रहा था जब उसे सवेरा की चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो तेजी से उठा और अंदर झांका। गाड़ी खाली थी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर गाड़ी की हेडलाइट ऑन की। थोड़े ही फासले पर सवेरा आंखें बंद किए थर थर कांपती हुई नजर आई। वो गाड़ी से उतरकर उस सिमत बढ़ा और बिना सोचे समझे उसके पास पहुंचकर उसे अपनी पनाह में ले लिया। इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, वो धीरे से उसके कान में बोल रहा था। बारिश की तेजी से बरसती बूंदों ने, सवेरा के नाजुक वजूद की नरमी ने उसके टेंस एहसासात को एक खुशगवारियत बख्श दी थी। वो सब कुछ भुलाकर सवेरा में गुम होने लगा था। मुझे लगा आप मुझे अकेला छोड़ गए हैं, सवेरा अपनी सरासीमगी पर काबू पाते हुए धीमे लहजे में बोली। शहरयार के आसाब पर सवेरा की आवाज़ बिजली बनकर गिरी। उसने एक झटके से सवेरा को खुद से अलग किया। तुमसे इसी बात की उम्मीद रखी जा सकती थी, और तुम किसकी इजाज़त से बाहर निकली गाड़ी से? बहुत शौक है तुम्हें घर से निकलने का, गाड़ी से निकलने का। दिल तो चाहता है तुम्हें यहीं कहीं जिंदा गाड़ कर घर चला जाऊं। वो सख्त मुश्तइल नज़र आ रहा था। आप गलत समझ रहे हैं। सुनो लड़की, मेरा दिमाग मज़ीद ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जाकर गाड़ी में बैठो। अभी मैं मरा नहीं हूँ जो तुम बाहर निकलने को बेताब हो रही हो। वो गुर्राया। 2 घंटे की रैश ड्राइविंग के बाद वो लंदन अपने घर पहुँच चुके थे। नीचे उतरो, वो सर्द लहजे में गाड़ी बंद करते हुए सवेरा से बोला। वो गाड़ी लॉक करके मेन दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखने की जहमत भी गवारा नहीं की थी। सवेरा बोझल कदमों से उसके पीछे चलती हुई अंदर दाखिल हुई। वो चाबी अपनी मखसूस जगह पर रखकर अपने कमरे में जा चुका था। वो काफ़ी देर खड़ी सोचती रही कि किधर जाए। अगर अपने कमरे में गई तो शहरयार बुरा मान जाएगा, तो अब वो मज़ीद उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो हिम्मत करके शहरयार के कमरे में दाखिल हुई।
शहरयार जो ठंडे पानी से शावर लेकर बाहर निकला ही था, अपने कमरे में सवेरा को खड़ा देखकर ठिठका। मुझे आपसे बात करनी है, वो बड़ी मुश्किल से घिघियाते हुए बोली। सॉरी, मुझे तुमसे तुम्हारी किसी भी बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है, जा सकती हो तुम, वो भरपूर तल्खी से बोला। आप प्लीज़ मेरी बात तो सुने, मैंने उस आदमी को नहीं। क्या मैंने तुमसे कोई सवाल किया? वो उसकी बात काटते हुए बोला। सवेरा उसकी बेरुखी बेतनाई देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। सवेरा ने जिस तरह तहाइफ उसके मुंह पर मारे थे उसे भूलना आसान नहीं था, और शहरयार तो वैसे भी मुश्किल पसंद था, और ये सामने खड़ी पानी की तरह आंसू बहाती हुई लड़की ने उसके दिल में बड़ी ख़ास जगह बनाई थी। वो उसे चाहने लगा था। वाकई तकदीर में जो लिखा हो वो होकर ही रहता है, इसी को किस्मत कहते हैं, और हमारी किस्मत बनाने वाला हमारा अल्लाह हमसे 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो फिर हमें भी खुश दिली से उसकी रज़ा में राज़ी होकर अपनी किस्मत को खुशी खुशी अपना लेना चाहिए। उसने सवेरा को अपनाया, उसे अपना एहसास दिलाया, और बदले में उस बेवकूफ़ लड़की ने उसका ही दिमाग घुमा कर रख दिया। लेकिन अब वो उसकी मज़ीद बेवकूफ़ियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे सबक सिखाना ज़रूरी था। मैं तुम्हें एक सुलझी हुई लड़की समझने लगा था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक अक्ल से पैदल बेवकूफ़ लड़की हो। वो चलते चलते रुका। आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुमने जो किया वो ठीक था क्या? बोलो, जवाब दो। वो फिर हुर्राया। मैंने क्या किया है? मेरे प्यार से दिए गए तहाइफ मेरे मुंह पर मारने के बाद तुम इतनी मासूम कैसे बन सकती हो? मैंने तो आपकी मुश्किल आसान करनी चाहिए थी। मेरी वजह से, मेरी मनहूसियत से आप भी परेशान हो रहे हैं, और वो आदमी, आप मुझे निकाल देंगे, इसलिए मैंने सोचा। वो सिसक उठी। क्या सोचा? शायद आप हमारे बड़ों के जोड़े इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से निकलना चाहें, तो मैं खुद ही। सुनो लड़की, तुम लड़कियों का मसला ही यही है कि अकल इस्तेमाल करनी ही नहीं आती, और तुम तो वैसे भी अकल से पैदल हो, जो मेरे जज्बात और एहसासात को समझ कर भी समझना नहीं चाहती। लेकिन मैं तुम्हें हमारी ज़िंदगी को तमाशा बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। आप प्लीज़ मुझे पाकिस्तान वापस भिजवा दें, मुझे आपके साथ नहीं रहना, वो बमुश्किल धीमे लहजे में बोली। कहने को तो बहुत कुछ था। वो हॉस्टल शिफ्ट होना चाहती थी, अपना करियर बनाना चाहती थी, शहरयार को फ़ैसला करने की आज़ादी देना चाहती थी, लेकिन ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना। वो उसे शानों से थामते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। सवेरा ने गड़बड़ाकर अपनी नज़रें झुका ली। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। चंद पल खामोशी से गुजरे। शहरयार की खुद पर जमी निगाहों ने उसे परेशान कर दिया था। नज़रें मिलाओ और कहो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, वो गुर्राया। प्लीज़ मुझे जाने दें। आई लव यू, डैम इट। इतनी सी बात तुम्हारी अकल में क्यों नहीं समाती है? और मैं इस तरह तुम्हें हरगिज़ भी अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से, अपने दिल से जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। वो फट पड़ा। सवेरा की सांसें इस इंकशाफ को सुनकर थम सी गई थी। शहरयार का ये इतराफ़ मोहब्बत उसके लिए नाकाबिले यकीन था। वो सुन सी हो गई। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में, और ख़बरदार जो मेरी इजाज़त के बगैर घर से कदम भी बाहर निकाला तो। वो एक झटके से उसे छोड़ता हुआ दूर हटा। वो चुपचाप बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। शहरयार का धूप छाँव जैसा रवैया उसकी समझ से बाहर था। शहरयार, कितने रूप हैं आपके, मैं आपको क्यों नहीं समझ पा रही? क्या आप वाकई मुझे नहीं छोड़ेंगे? कई सवालात उसके जहन में हलचल मचा रहे थे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरी तो ज़िंदगी ही अब आप हैं। सारे रास्ते आप पर आकर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आप उर्वा के हैं। आपने उससे मंगनी की। मैं कैसे बताऊं कि मैं नहीं चाहती वो आपके साथ हो, आपके पास हो। वो उससे ख्यालों में बातें कर रही थी। रात सरकती जा रही थी। फजर का वक्त होते ही वो नमाज के लिए उठ गई। नमाज पढ़कर वो किचन में आई तो शहरयार हस्बे आदत जॉगिंग के लिए निकला हुआ था। उसने जल्दी से फ्रिज से फ्रेश मौसमी निकालकर जूस बनाना शुरू किया। वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। जूस बनाकर नाश्ता तैयार करके उसने न्यूज़पेपर के साथ मेज़ पर रखा ही था कि शहरयार वापस आ गया,
اور اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ کافی دیر بعد وہ کوٹ پینٹ میں ملبوس اپنا بریف کیس پکڑے کمرے سے نکلا۔ وہ تیزی سے اسے دیکھ کر کھڑی ہوئی۔ آپ کا ناشتہ۔ وہ اسے اگنور کرتا ہوا سیدھا باہر نکل گیا۔